In this lesson, I'm going to cover the topic called complex numbers. ये A levels pure mathematics के syllabus के अंदर है, and hopefully this lecture is going to be completely comprehensive. So इसके अलावा you don't need to know much about complex numbers besides whatever is in this lecture. I just wanted to also give a disclaimer before I begin, is that since 12 years I've been teaching university students. So younger students को मैंने कभी पढ़ाया नहीं है. So this is my first time and actually my first lecture which I am dedicating to the younger generation. So if I'm too fast or I'm too slow, let me know and I will adjust my teaching style according to A levels के बच्चों की requirement. Okay, let's begin. जो आयोटा होता है ना, दैट्स एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है. एंड इट इज़ बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू अ -1 एंड देयरफॉर आई की वैल्यू इज़ इक्वल्स टू अ -1. इसका फ़ायदा ये है कि फॉर इंस्टेंस इफ़ देयर इज़ एन अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, तो हम ना इसको क्या कर देते हैं, वी जस्ट से कि इट इज़ अनडिफाइंड एंड इसको आगे हम सॉल्व नहीं करते हैं, राइट. बट अगर हम आयोटा का या फिर बेसिकली हम इमेजिनरी नंबर्स यूज़ करें, then an under root of -4 can be written as a -1 multiplied by a 4, right? And therefore this can be written as an under root of 4 multiplied by an under root of -1. And under root of 4 क्या होता है, 2. and under root of क्या कहते हैं -1 क्या होता है, आयोटा. तो इन दिस केस ना, आप एक नंबर को जो प्रीवियसली अनडिफाइंड था उसको एक कॉम्प्लेक्स रेंज के या फिर कॉम्प्लेक्स स्पेस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है. सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन. So let's just write this as being the complex space. Okay, moving on. So how do I represent mathematically जैसा Cartesian क्या कहते हैं, I think Cartesian representation कहते हैं of a complex number. So how do I write this? So usually ना Z is being used, मैंने देखा है A levels की, यहाँ P3 P2 भी मैंने खोली, यहाँ से मैंने lecture बनाया आप लोगों के लिए. So बेसिकली इसका या फिर इतना लिखा जाता है a plus ib and sometimes it's written as x plus iy. in both these cases ना, जो ये first वाला जो नंबर है ना, ये denotes the real part of the complex number and जो आयोटा के साथ जो नंबर है ना, that denotes the imaginary part of the complex number. So for इसको इस तरह लिखते हैं कि the real part of the complex number z is a. और यहाँ क्या है, the real part of the complex number z is an x and the imaginary part, so imaginary को I m से denote किया जाता है. अब शायद ब्रैकेट में ना भी डालो z तो it's fine in case तो function ही ना लगना शुरू हो जाए. So imaginary part is equals to a b and imaginary part is equals to a y over here. So ये जो है ना, basically that's just the representation of a complex number. ये mathematical representation है, ठीक है. Okay, what about कि इसको हम diagrammatically किस तरह represent करें. So diagrammatically representation जो है ना इसकी, it's all done on an it's called an argand diagram. और आपने बस इसको ये याद रखना है कि जो x axis है ना, उसमें हमने सारे जो real part है of the complex number वो हमने रखना है, और जो इमेजिनरी वाला पार्ट है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो हमने वर्टिकल एक्सिस में लिखना है. तो फॉर इंस्टेंस अगर इस तरह करके एक पॉइंट है, राइट, सो जो उसका रियल पार्ट है, सो ओवर हियर आई एम गोइंग टू राइट एन ए एंड ओवर हियर आई एम गोइंग टू राइट द बी, राइट. सो या फिर एग्जांपल ले लेते हैं. इफ़ आई से कि z इज़ इक्वल्स टू 5 plus 4i. So जो इसका real part है that is a 5 and जो imaginary part है that is a 4, ठीक है. So that's how you represent it diagrammatically. जो इसके बीच में angle है इसको भी हम कह देते हैं theta, ठीक है. So this is how you diagrammatically represent. और obviously ये negative axis पे भी जा सकता है. तो for instance if I say instead
it was -1 plus 2i. Then you search for a -1 here and you search for 2 here and इस तरह करके आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z. ठीक है. सो और एंगल अभी मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. डोंट फील ओवरवेलम्ड बाय दिस. ओके, नेक्स्ट चीज़, बल्कि आई डिड ऐड समथिंग फ्रॉम द कैम्ब्रिज की बुक कि इस तरह की अच्छी से रिप्रेजेंटेशन है कि 2 + 3i को किस तरह करें. सो 2 इज़ द द रियल पार्ट. सो यहाँ से 2 देखा एंड 3 हमने वर्टिकल एक्सिस में देखा. तो अच्छी उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि देखो ना, एक्स एंड वाई की वैल्यूज ना ला लो और कार्टेशियन प्लेन में इस तरह करके आप प्लॉट कर दो. तो फॉर इंस्टेंस इसमें क्या है, रियल पार्ट -5 है, इमेजिनरी -4 है. सो -5 एंड -4 ढूंढो और यहाँ आप प्लॉट कर दो. उसी तरह जो 2 आया है उसमें तो x का 0 होगी वैल्यू एंड y की क्या है 2. सो एग्जैक्टली इधर उसने प्लॉट कर दिया. एंड अगर 7 है तो दैट्स जस्ट x की वैल्यू 7 और उसने इधर प्लॉट कर दी. सो लाइक द एसेंशियल रीडिंग हैज़ गिवन इस तरह की एग्जांपल्स फॉर यू टू सी. ओके, नेक्स्ट इज़ द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो मॉड्यूलस जो होता है ना, इट्स डिनोटेड विद अ लाइक डंडी, 2 dundies like this, and it's basically just the distance of a point from the origin in an Argand diagram. तो इससे आप सोच लो कि ये इस जो वेक्टर की जो है ना, वेक्टर फॉर्म अगर आप सोचो तो उसकी जो लेंथ है उसको कहते हैं बल्कि मैं यहाँ लिख भी देती हूँ. सो इट इज़ जस्ट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द origin, राइट. सो अच्छा, अब यहाँ जो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करें तो इसको अगर मैं आर कह देती हूँ. सो लाइक ऑल दिस, लेट्स सपोज ऑल दिस इज़ आर. सो द पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट जो हाइपोटेनस स्क्वायर है वो ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर की होगा, विच मीन्स कि जो लेंथ है दैट वुड बी एन अंडर रूट ऑफ एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो यहाँ जो है, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इफ़ आई से कि the complex number is an x plus iy, तो the modulus would be an under root of x square plus y square. And layman terms में आप इस तरह पर सोच लो कि this is just the length of a vector from the origin. So ये origin से लिखना पड़ता है till कौन सा पॉइंट है ऑन द कार्टेशियन प्लेन, टिल पॉइंट एक्स वाई. ठीक है. सो दैट इज़ द मॉड्यूलस और बेसिकली द लेंथ ऑफ द वेक्टर. एग्जांपल कर लेते हैं. पिछले फर्ज करो इस तरह का दिया हुआ है, z इज़ इक्वल्स टू 5 + 2i. देन अगर आपसे वो मॉड्यूलस पूछ रहा है तो आपने क्या कर देना है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और अंडर रूट. सो यूल गेट 25 प्लस 4 का अंडर रूट विच इज़ जस्ट 29 का अंडर रूट. सही. सो दैट्स जस्ट द लेंथ ऑफ द वेक्टर. या फिर मॉड्यूलस, आई थिंक एग्ज़ाम में आपके पास डायरेक्टली पूछ लेंगे कि मॉड्यूलस बताओ. ओके, नेक्स्ट क्या है, दिस इज़ फन पार्ट, hopefully not overwhelming, is what is the argument of a complex number. जो argument है ना उसको जैसा इस तरह करके भी लिखा जाता है, इस तरह करके the argument of a I think arg z बस ऐसा, argument of a complex number z where ये हमारा जो complex number है उसका कोई एक real part है और y कोई imaginary part है. ओके. सो इस तरह सोचो कि हमारे पास ना 2 ऑप्शंस हैं, डोमेन या फिर 0 से 2 मतलब 360 डिग्रीज़, या फिर हम इस तरह करके कहते हैं कि आप डोमेन इस तरह देखो कि सिर्फ यहाँ से क्या कहते हैं पॉजिटिवली इधर जा सकते हो, या फिर क्या कहते हैं नहीं इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सोच लो, या फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट सोच लो. सो दिस इज़ लाइक from 0 to 180 एंटी क्लॉकवाइज, या फिर यहाँ from 0
टू 180 एंटी क्लॉकवाइज। बट जब यहाँ डोमेन की बात आती है ना, फ्रॉम 0 to 360 डिग्रीज़, उसको यू हैव टू इमेजिन कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही हो रही है, ठीक है। अच्छा, आपकी एसेंशियल रीडिंग बुक में ये एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ने कहा है कि अगर आर्ग्यूमेंट देखनी है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर -4, वो इधर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसकी आर्ग्यूमेंट क्या है, फ्रॉम हेयर इट्स फुली 180 डिग्रीज़, इसलिए उसकी आर्ग्यूमेंट उसने लिख दी है कि इट इज़ 180 डिग्री, ठीक है। अब ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 + 3i, उसको पहले उसने यहाँ प्लॉट किया है, और फिर उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट ये है, वो हम बाद में निकालना बताएंगे, लेकिन एंगल एग्जैक्टली ये निकलता है। तो बेसिकली दिस होल एरिया इज़ 3/4। बाय द वे यहाँ ये भी मैं लिख देती हूँ कि जो ये पाई इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्रीज़, ठीक है। सो पाई रेडियंस इज़ 180 डिग्रीज़। अच्छा, और क्या एग्जांपल दी हुई है कि अगर यहाँ -2i होता तो दैट, अगर मैं अब इस तरह किस डोमेन में देख रहा है, वो इस वाले डोमेन में देख रहा है। सो if I go if I go clockwise here, then this is a -90 degrees, ठीक है। ओके, what else, कोई और भी नंबर है 1.5, वो ओरिजिन के ऊपर ही है, so therefore 0 degrees, ओके। अच्छा, पहले ना ऐसा करते हैं, ये भी करते हैं, इस डायग्राम की तरफ देखो कि हाउ, अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है, राइट, सो वो क्या होएगी, इफ़ आई टेक द tan ऑफ थीटा, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या होता है y, एंड एजेसेंट क्या होएगा x, सो y ओवर एन x। सो देयरफॉर जो ये इंटीरियर एंगल है ना, जिसको आर्ग्यूमेंट यहाँ बोला जा रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी द tan इनवर्स ऑफ y ओवर एन x, ठीक है। सो ये याद रख लेना है कि ये इसकी वैल्यू है, ओके। अब आगे चलते हैं, बल्कि ना आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, लेट्स डू दिस। ऐसा करते हैं, हमें ना डोमेन ऑलरेडी बताई हुई है, यहाँ ना इस तरह इमेजिन करो कि इंटीरियर एंगल जो है ना, यहाँ कर देते हैं, इसको कह देते हैं अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा और थीटा यहाँ ना दोनों आपस में बराबर होंगे। सो इन दिस केस जो है ना, जो आर्ग्यूमेंट है ना ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वो थीटा के बराबर ही है, ठीक है। बट लेट्स टेक इट फर्दर, व्हाट इफ यहाँ एंगल नहीं आता, ठीक है। सो लेट्स टेक इट ओवर हियर लाइक दिस, एंड ये अब हमारा थीटा है, बट व्हाट इज़ द इंटीरियर एंगल, लेट मी एक्चुअली कलर कोड इट, ये हमारा थीटा है, एंड दिस इज़ माय अल्फ़ा, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले केस में लाइक आई सेड कि इन द अबव केस आई विल हैव कि इफ़ आई राइट द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो वो अल्फ़ा के बराबर है, ठीक है। अच्छा, बट यहाँ जो है, यहाँ जब आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखा है, दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, रिमेंबर, ये हम अल्फ़ा जो है ना, इंटीरियर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हमेशा, जो कैलकुलेटर के अंदर जो आप एंगल डालते हो ना, वो हमेशा इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो इसमें आपने आर्ग्यूमेंट बतानी है, ठीक है, विच मीन्स के यहाँ एंटी, बिकॉज आई एम लुकिंग एट 0 से लेकर 360 डिग्रीज़, तो आई वॉन्ट टू सी कि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में थीटा क्या था। अच्छा, तो इस केस में क्या है, इट्स गोइंग टू बी, जो फ्लैट एंगल था दैट इज़ 180 डिग्रीज़, एंड माइनस अगर अल्फ़ा करें, एंड रिमेंबर ये चैप्टर ना तुम लोग सब लोगों का, इट्स गोइंग टू ऑलवेज बी मेजर्ड इन रेडियंस, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू राइट पाई माइनस अल्फ़ा, सो दैट इज़ योर आर्ग्यूमेंट ऑफ जी। अच्छा, आगे और भी सारे पॉसिबिलिटीज़ कर लेते हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट 2 पॉसिबिलिटीज़ जो आ सकती हैं, एंड आपसे वो पूछ सकता है कि आर्ग्यूमेंट क्या है। So let's, if you've understood this gist, तो फिर ये अगला भी बहुत easily हो जाएगा. The trick is like not to panic, not to feel overwhelmed.
because sometimes mathematics isn't as complicated as we make make ourselves believe because हम overwhelm हो जाते हैं. Okay, so ये पूरा का पूरा हमारा क्या argument है, and जो calculator के अंदर मैंने डालना है that is my alpha, जो मेरा interior angle होता है. ठीक है. So in this case अब मैंने what do I write? I say the argument of the complex number is theta, right? But in this case theta क्या होएगा? That's a 180 degrees plus the interior angle. So that's a 180 degree plus the interior angle. We're done here. अच्छा आगे if I end up with a complex number over here, ठीक है, ये तो हो गया हमारा इस साइड पे. So अब ये जो सारा है, this movement is theta and the interior angle is ये, this is my interior angle. So कैलकुलेटर के अंदर क्या डालना है, हमने डालना होता है अल्फ़ा डालना होता है. आर्ग्यूमेंट हमने स्टेट करनी है. आर्ग्यूमेंट इज़ it's going to be now a 360 degrees minus alpha, right? So हम कर सकते हैं कि it's a 2 pi minus alpha. So ये सारे scenarios हैं, possible scenarios हैं if the domain is from a 0 to 360 degrees, ठीक है. And remember in all of these cases the movement is anti-clockwise. ठीक है. अच्छा अब अगर हम जा रहे हैं, हम if we're only allowed to work in the domain, in this domain, right? So एक तो possible है कि you know आप इधर से इधर आ रहे हो, right? So इधर एक ही diagram पे सोचो in order to like have a less messy situation. एक इस तरह सोच लो ना कि एक ये आ गया अल्फ़ा और एक ये आ गया अल्फ़ा, राइट. अच्छा अब इस केस में if I'm looking just at 0 से लेकर 180 degrees, right? In this case क्या होएगा, इसी तरह रहेगा कि यहाँ जो है argument of the complex number z would be alpha itself, और इस साइड पे क्या होएगा कि जो आर्ग्यूमेंट होएगी दैट इज़ गोइंग टू बी ये आर्ग्यूमेंट होता है, राइट. सो 180 डिग्रीज माइनस अल्फ़ा, सो पाई माइनस अल्फ़ा. सो फार अभी तक हमारा सेम चल रहा है. अच्छा नेक्स्ट जो है कि अगर हम इस तरह करें कि नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम इट्स लेस दैन ज़ीरो and greater than minus. So in a way आप इस तरह सोच लो कि ये एंटी क्लॉकवाइज you know मूवमेंट हो रही है and यहाँ क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है. अच्छा in this case फिर से हम डायग्राम बना के देख लेते हैं. सो डायग्राम बनाते हैं. एक ये पॉसिबिलिटी है और एक इधर पॉसिबिलिटी है. दोनों का इंटीरियर एंगल या फिर ये है अल्फ़ा या फिर ये है अल्फ़ा, ठीक है. अच्छा अब इसके गैस करते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आर्ग्यूमेंट, ठीक है. सो इन दिस केस यू कैन सी कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, वो किस तरह ये अब दिस इज नाउ वी आर गोइंग क्या कहते हैं, सो क्लॉकवाइज, राइट. सो आर्ग्यूमेंट हम इसको लिखेंगे माइनस अल्फ़ा करके, एंड इन दिस केस ये दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट. अब चलो इसे यहाँ ड्रॉ भी कर लेते हैं इस तरह करके. ये रही मेरी आर्ग्यूमेंट. आई एम गोइंग क्लॉकवाइज एंड देयरफॉर यहाँ क्या लिखें, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन दिस केस इज़ गोइंग टू बी क्या होना चाहिए इधर, लेट मी थिंक अबाउट इट. आई गेस अल्फ़ा से या फिर इस तरह लिखते हैं माइनस 180 डिग्रीज़. ये पूरी जगह माइनस 180 डिग्रीज़ है. इसके अंदर अगर ये ऐड कर दें तो ये पीछे बच जाएगा, राइट. सो प्लस अल्फ़ा. सो
Yeah, I think that's it. So my recommendation would be, अगर question में specify नहीं किया हुआ तो stick to the anti-clockwise and the full circle, जो full 0 से 360 degrees की domain. Okay, let's go on. So next is the modulus argument या फिर the polar form of a complex number. Okay, polar form क्या होता है? Polar form ये है कि वो कहता है कि ये जो है ना लेंथ जो है ये r से डिनोट करता है और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया जाता है. सो वो कहता है कि r स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे अगर साइन लगाया जाए, राइट, इफ़ आई से साइन ऑफ द एंगल थीटा, then I know that's going to be an opposite y over hypotenuse, which is an r, right? And अगर cos theta देखा जाए तो cos theta is adjacent over an hypotenuse, सही. So from here what I can see is that जो y है that is an r sin theta, and यहाँ from x हमें पता चल रहा है it is a r cos theta. अच्छा, सो जो कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसको हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नहीं एक्स वाई के ऐसे स्टाइल से लिख लेते हैं एक्स प्लस आई वाई. सो यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट करें एक्स की वैल्यू, राइट, एंड यहाँ वाई की वैल्यू, देखते हैं क्या होगा. एक्स की वैल्यू हमने डाली आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, एंड z क्या हो गया, अगर r को if I take as common तो आ जाएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा, and this would give, this is basically ये, this is the polar form. So this is the polar form of a complex number. सो ऑल यू नीड टू नो इज़, यहाँ से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी. r के साथ पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किया, इनको ऐड किया तो अंडर रूट किया तो r की वैल्यू मिल जाएगी. और थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेटर यूज़ करके निकाल सकते हो, ईदर फ्रॉम व्हाई इज़ इन माई पेन कोऑपरेटिंग, इधर इधर से या फिर इधर से, ठीक है. सो क्वेश्चन करेंगे तो बेहतर समझ आ जाएगी. अभी फॉर नाउ जस्ट नो कि दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन. मैं एक्चुअली समरी लिख देती हूँ कि जो z है दैट्स x plus iy. This is sort of like, I think it's called the Cartesian representation, and this is the polar representation, r cos theta plus I sin theta. So this is the polar form. अच्छा, एक होता है exponential form, एंड दैट इज़ जस्ट कि ये अगर हमारी कार्टीजियन फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं. एंड ये जो प्रूफ है ना, इट रिक्वायर्स, बल्कि यहाँ से मैंने देखा था, कहाँ गया, दिस इज़ योर एसेंशियल रीडिंग. जो प्रूफ है ना, इस पर डिफरेंस इक्वेशंस उसने दी हुई हैं. एंड सिंस आई एम न्यू टू द ए लेवल सिलेबस, आई एम नॉट रियली श्योर अगर you guys are even required to know the proof of this conversion. So I think I'm going to leave it out right now. पता नहीं कहाँ गया, इधर ही कहीं लिखा हुआ था. I just saw it today somewhere over here. I don't know where it is now. Anyhow, but इसका जो proof है ना, फ्रॉम हेयर टू देयर, तुम लोगों की ये जो कैम्ब्रिज की बुक है उसमें दिया हुआ डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करके. वरना लाइक हाउ आई यूज़ इट, आई जस्ट यूज़ द टेलर एक्सपेंशन. सो दिस एंड वो भी आई डोंट थिंक तुम लोगों के सिलेबस में है. सो आई यूज़ द मैक्लॉरेन
expansion for this proof, and I feel that that's most probably not in A-level syllabus. So just ignoring the proof, just memorize that these are 3 ways that you can represent a complex number. Okay, ये मैंने क्वेश्चंस भी डाले थे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इफ़ आई स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस. maybe I'll solve these questions in another class, and अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं. ये ना ये एक और अच्छा सा टेबल मुझे लगा तुम लोगों की बुक में था कि fill in these values. So for instance what I can see is कि अगर यहाँ अगर इसको देखा जाए और यहाँ if I employ the Pythagoras theorem, so what will be the value of the hypotenuse here? It's going to be a 1 square plus 1 square का under root. So basically ये क्या हो जाएगा इसका, this is going to be an under root 2, and यहाँ ये क्या हो जाएगा, this is basically a 2 square is equals to ये unknown plus 1 square. So नहीं this is equals to that, हाँ तो सही है ना. So यहाँ 4 हो जाएगा x square plus 1, so x square is equals to 3, so under root of 3. So ये जो vertical distance है, this is an under root of 3. ठीक है. So Pythagoras theorem यूज़ किया. अब जब अगर साइन ऑफ एनी वो एंगल पूछता है ना, वो आप इन ट्रायंगल्स को देख के बता सकते हो. तो फॉर इंस्टेंस यहाँ अगर पता चल रहा है कि इफ़ दिस इज़ अ 90 डिग्री एंगल, so if this is a pi by 2, then because the sum of these angles in a triangle must add up to a 180 degree, so that means कि ये क्या होएगा, अगर ये क्या होएगा 45 डिग्रीज एंड ये भी 45 डिग्रीज, राइट, because 45 plus 45 plus 90 will give us 90 plus 90 which is 180, which is what is required. ठीक है. अच्छा, सो यहाँ डालते हैं, इसको कवर करते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट करो, दिस इज़ द एंगल एंड आई वांट टू सी द साइन कर लेते हैं. ठीक है, तो साइन of pi by 4 is opposite over hypotenuse. So opposite क्या है is a 1 and hypotenuse है under root of 2. ठीक है, यहीं cos लगा देते हैं. cos क्या हो जाएगा, adjacent over hypotenuse. Done. और जो tan है वो basically sin and cos को divide करके पता चलता है, तो this is just a 1. ठीक है. Since this is an equilateral triangle, because देखो ना ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 2 है और ये लेंथ 1 and 1 मिला के 2 है, तो दैट मीन्स अगर सारी लेंथ्स इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए. और दैट मीन्स कि अगर यहाँ एंगल x है, ये एंगल x है, ये एंगल x है, then x plus x should give me 180 degrees. That means 3x is equals to 180 degrees. 180 को divide किया by 3, that becomes a 60 degrees. ठीक है, और 60 degree क्या होता है, basically pi by 3. So pi by 3 is a 60 degrees. So that means कि ये angle, this angle is a pi by 3. ये अगर 90 डिग्री एंगल है, दैट मीन्स पीछे क्या रह जाएगा, अ 30 डिग्री एंगल. सही है. सो पाई बाय 6 इज़ अ 30 डिग्रीज एंड अ पाई बाय 4 इज़ अ 45 डिग्रीज. अच्छा, अब यहाँ करते हैं, इस वाले ट्रायंगल की तरफ देखते हैं, या फिर चलो इसकी तरफ देख लो कि इसका साइन लगाते हैं. ठीक है, तो साइन ऑफ पाई बाय 3 इज़ ऑपोजिट over hypotenuse. ठीक है, so opposite is under root of 3, hypotenuse is 2. इसी का cos देखते हैं. cos is going to be adjacent over hypotenuse, so 1 over 2. अच्छा, and pi by 6 के साथ ऐसे ही करते हैं कि sin of pi by 6 is opposite 1, hypotenuse half. 2 sorry. So साइन करी थी, राइट, हाँ, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. एंड
कॉस करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी एडजेसेंट over hypotenuse. So this is going to be an under root 3 by 2. Okay? And tan क्या होता है? It's just simply sine over cos. So sine इस एक्सप्रेशन को इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा यहाँ 1 over under root of 3 और ऊपर क्या रह जाएगा under root 3 सिर्फ under root 3 जाएगा. Yeah. That's it. So अगर इस तरह के टेबल आते हैं ना तो क्या अभी मैंने what information did I use? I just used के sum of angles should add up to 180 degrees. एक ये चीज़ यूज़ किया. और अगर लेंथ है ना उसका ताल्लुक है एंगल के साथ. ठीक है. सो the larger the length of a triangle, the larger is going to be the angle associated with it. Okay, next चलते हैं. What is the complex conjugate? This is just ये definition है जो definition आनी चाहिए. Basically क्या होता है complex conjugate के फ़र्ज़ कर अगर मैं ऐसा एक नंबर लिख देते हैं ऐसे कि z है which is a 3 plus 5i and they're asking you for the complex conjugate. तो that's represented by a star and उसको लिखा जाएगा 3 minus 5i. विजुअली अगर सोचना है ना तो ये देखो कि इसकी ना जो रियल पार्ट है ना वो बिल्कुल सेम है एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो चेंज हो रहा है. तो इन अ वे इट्स अ रिफ्लेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस. सो अगर z ये था ना तो देन z स्टार जो है वो एग्जैक्टली इट्स गोइंग जस्ट रिफ्लेक्शन. मतलब कि आपने यूं करके रिफ्लेक्ट किया एक्स एक्सिस के ऊपर. ठीक है. इन दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए. सो अगर मैंने मॉड्यूलस लिया ना z का दैट्स गोइंग टू बी द सेम एज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉन्जुगेट. ठीक है. एंड दे आर जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. सो z स्टार इज अ रिफ्लेक्शन of z कहाँ पे along the x axis. वजह क्या है कि रियल पार्ट सेम है और इमेजिनरी पार्ट ऑपोजिट हो जाता है. ठीक है. चलो आगे चलते हैं ऑपरेशंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है. बिफोर आई डू द ऑपरेशंस इनको ना इस तरह देख लो. एक आई डोंट नो आई स्ट्रगल्ड विद मैथमेटिक्स अंटिल आई स्टार्टेड इमेजिनिंग व्हाट आई एम डूइंग. जब आप इमेजिन करना शुरू करते थे ना तो समहाउ सब कुछ ईजी होना शुरू हो जाता है. रट्टा कम लगाना पड़ता है एंड आपको समझ ज़्यादा अच्छी आई भी होती है. सो ना अगर आप इस तरह सोचो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसको हम ना एज अ वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो ओरिजिन से निकलता है ना वेक्टर उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं. तो उसको ना एज अ पोजीशन वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करें तो ये प्लस हो माइनस होना तो इस तरह करके इन दोनों के रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स ना आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सो मतलब इजी है. फॉर इंस्टेंस इफ़ आई यहाँ कोई एग्जांपल मैंने आई एम श्योर लिखी हुई या फॉर इंस्टेंस के अगर ये दो वेक्टर दिए हुए हैं हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है. और मैंने इनको ऐड करना है. सो क्या करना है इसके जो रियल पार्ट्स को देखना है. इसका 2 है और इसका 3 है. इमेजिनरी पार्ट क्या है -5 एंड 9. सो आप कह रहे हैं कि जो रियल पार्ट्स है ना उनको आप ऐड कर दो. ठीक है. और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको भी आप इसमें ऐड कर दो. सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा. इट्स गोइंग टू बिकम अ 5 + 5 6 7 8 9 4 i. ठीक है. और अगर यहाँ माइनस होता तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ना था. यहाँ हमने इस तरह करना था कि इनके जो है ना क्या कहते हैं अब जो रियल पार्ट्स हैं उनको आपस में माइनस करना है एंड इमेजिनरी पार्ट्स को माइनस करना है. तो फॉर इंस्टेंस के z1 मैंने ऐसे लिख दिया एंड -3 अब आ जाएगा. ठीक है. एंड यहाँ -5 ऐसे ही एंड -9 आ जाएगा. ठीक है. सो यहाँ क्या आ जाएगा अगर इनको माइनस किया इट्स -1 -14i. सो वो जो आपको कह रहा था ना कि इसको इस तरह इमेजिन करो कि एक वेक्टर है. ठीक है. सो उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में करके बता देती हूँ. वैसे उस तरह करना नहीं एग्ज़ाम में बट जस्ट फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग कि इसको एज अ वेक्टर 2 and -5 करके सोच लो.
ठीक है। एंड अगले वाले को भी एज अ वेक्टर सोच लो कि ये 3 एंड 9 है। अब देखो ना थोड़ा थोड़ा ईजी लगता है कि इनको अगर मैंने प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। और सिंपली फिर अगर यहाँ रफ में कर रहे हो तो बस उसको कन्वर्ट कर दो कि ये 4 + 5 + 4 आया। सिमिलरली इसी तरह अगर माइनस होता है इनके बीच में तो ये आ जाना था आंसर। सो आई जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग एन iPad आई कैन डू इट क्विकली। सो यहाँ अगर माइनस होता तो 2 - 3 - 1 हो जाना था। एंड 5 यहाँ मैंने गलती नहीं करती, फिर यहाँ मैंने गलती किया, फिर ये है -5 -9। हाँ नहीं सही किया। तो -5 - 9 इज़ अ -14। सो एग्जैक्टली वही आंसर आ गया। ठीक है। सो अगर आप उसको कॉलम वेक्टर के तरह टर्म्स में देखो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, वरना आई वुड से इतना टाइम वेस्ट ना करो, बस इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से बस ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो अगर ऐड कह रहे हैं, और क्या कहते हैं, इमेजिनरी को अलग से देख लो, रियल को अलग से देख लो और ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है। अच्छा, कहाँ की विजुलाइजेशन की बात है। वो कहता है इस तरह, याद रखो कि अगर कोई दो वेक्टर्स है ना, Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, Z1 + Z2। तो इन दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे ना तो रिजल्टिंग वेक्टर बीच में से निकलेगा और आगे की तरफ जाएगा। ठीक है। बिकॉज क्या, इट्स अ वे, इन अ वे आप ऐसा सोचो कि पहले आप Z1 के डायरेक्शन में गए, फिर आप Z2 के डायरेक्शन में गए, तो इन अ वे आपने अपनी जर्नी इधर से स्टार्ट की और आपने जर्नी अपनी इधर एंड की। ठीक है। सो अगर कोई भी दो वेक्टर्स हम ऐड कर रहे होते हैं ना तो रिजल्टिंग वेक्टर यूं करके बीच में से आगे जाता है। एंड अगर दो वेक्टर्स माइनस हो रहे हो तो रिजल्टिंग वेक्टर बीच में इस तरह इनको ज्वाइन करता है। सो एडिशन याद रखनी है कि बीच में निकलना है और आगे की तरफ जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्शन होगी ना सो वो इस तरीके से जाएगा, इनको ज्वाइन करेगा। द रीज़न बीइंग कि अगर मैंने Z2 + W किया तो इट्स के आपने इधर से अपना जर्नी स्टार्ट किया था, यहाँ से गए, इधर से इधर गए, और यहाँ आपने एंड किया था, तो द रिजल्टिंग वेक्टर Z1 होएगा, विच मीन्स यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, इधर जर्नी एंड किया। तो अगर W को यहाँ सब्जेक्ट बना लो ना तो आपका क्या आ जाता है, W की वैल्यू Z1 - Z2। वन थिंग आई वुड रिकमेंड इज़ कि एक अच्छा रटा है कि फ़र्ज़ करो ये अगर Z1 है और ये Z2 है, सो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपसे जो पूछ सकता है। ठीक है, हमें पता है कि माइनस किया तो इन दोनों को ज्वाइन करेगा, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जो डायरेक्शन मिलेगी अगर Z1 - Z2 हो या फिर Z2 - Z1 हो। ठीक है। अगर Z1 - Z2 है ना तो ये याद रखना है कि जो एंड इसकी जो डायरेक्शन है ना वो इस तरफ होएगी। आई विल मेक अ बिग एरो इस तरह करके। ठीक है। और अगर Z2 - Z1 है तो ये वेक्टर इधर से स्टार्ट होएगा, सो इट्स स्टार्टिंग हेयर एंड एंडिंग हेयर। सही। सो क्या है, व्हाट्स द समरी, कि अगर दो वेक्टर्स ऐड हो रहे होते हैं तो बीच में से आगे की तरफ जाएगा, एंड अगर दो वेक्टर्स माइनस हो रहे होते हैं तो इनको ज्वाइन करके ट्राइंगल बनेगा। सो दैट्स द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लस और माइनस में हो क्या रहा होता है। एंड दिस इज़ नॉट द विजुअल वन बट दिस इज़ द मैथमेटिकल ऑपरेशन। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कि वो आपको मल्टीप्लिकेशन पूछ लेता है। ओके, मल्टीप्लिकेशन जो है आपने किस तरह करनी है कि आई जस्ट पुट एन एग्जाम्पल हियर बिकॉज आई थिंक यहाँ जेनेरिकली देखने से ना ज़्यादा ईजियर लगता है अगर आप नंबर से डाल के देख लो। सो फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव अ 3 + 2i and I'm multiplying it with a -5 - 6i, then क्या हो जाएगा, पहले मैंने 3 को मल्टीप्लाई करना है बाय दिस, देन मैंने 2i को मल्टीप्लाई करना है बाय दिस। सही। अच्छा, अब जब 3 को किया तो क्या आ जाएगा, -15 एंड 6 3s are 18, सो -16i। ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, -10i
and then we have a minus 12i square. अब हमें ना ये आई स्क्वायर की तो वैल्यू हमने पता है, ठीक है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर था एंड वी नो कि आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अ -1, तो हम ये इस फैक्ट को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो क्या हो जाएगा यहाँ -15 -18 बल्कि 28 लिख देते हैं ना, 28i, फिर क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 12 प्लस 12 बन जाएगा. सो देयरफॉर अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते तो इट वुड हैव बीन आई गेस अ -3 -28i. You're doing a good job. Actually, in beach mein, whenever you get tired, just take a pause and take break and then continue. ये मैंने क्वेश्चन डाल दिए थे in hopes के I would cover like solve some of these over here, but I do think that will be a waste of time. If you've understood this example, then you should be able to do these questions. And math is all about practice, so just keep practicing and you'll get an A star. Okay, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, वो होते हैं जिनके रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हों. सो अगर रियल पार्ट भी सेम है एंड इमेजिनरी पार्ट भी सेम है, ओनली देन यू कैन कॉल देम इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, दैट्स इट. नेक्स्ट बात आ गई डिवीजन की. वो कहते हैं अगर 1 डिवाइड करना है बाय 3 + 5i, उसको ना एज अ इस तरह करके कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह आप शो करो. सो द ट्रिक टू दिस इज़ इट्स कॉल्ड यू वांट टू rationalize the denominator. अच्छा, वो इस तरह करते हैं कि 1/3 + 5i को इस तरह किया कि न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया. अच्छा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या था, 3 - 5i और नीचे भी 3 - 5i. ठीक है. अच्छा, न्यूमरेटर में क्या आ गया, 3 - 5i और डिनोमिनेटर में इस तरह करके समझ लो a + b to a minus b, which by the way is equals to a square minus b square, right? So यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये तो 3 square minus 5i square है, right? So यहाँ क्या हो गया, न्यूमरेटर में 3 - 5i और नीचे 3 3s are 9 minus 5 5s are 25 and iota square. In iota square क्या था, it was a -1. So once we substitute that, तो डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. सो 9 + 25, right? So in this case we'll get 3 - 5i over 25 प्लस अगर 10 करते तो 35 होता, तो यहाँ क्या हो जाएगा 34. ठीक है. अब उसने कहा उसको ना इस फॉर्म में बताओ पी एंड क्यू की वैल्यू क्या है. सो पी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/34 एंड क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/34 इंटू आई. एग्जामिनर को आपने क्या बताना है इन दी एंड, बिकॉज उसने कहा पी एंड क्यू बताओ. पी की वैल्यू है 3/34 एंड क्यू की वैल्यू है -5/34. ठीक है. सो देन यूर डन. अगेन वो इस तरह के क्वेश्चन है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दिस नंबर. अच्छा, आप ना एक और स्टाइल से भी कर सकते हैं. हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करो आंसर इज़ a + bi. हमें ऐसे a एंड b फाइंड करने हैं सच दैट दिस इज़ ट्रू, 5 + 2i. ठीक है. इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो a + bi मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 + 2i. अब बाय द वे मैं क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग समथिंग एल्स, आई एम नॉट रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, अब इसको खोलती हूँ. ठीक है. a मल्टीप्लाई होएगा 5 + 2i के साथ, देन bi मल्टीप्लाई होएगा 5 + 2i के साथ. सब किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर.
अब आ गया हमारा 5a प्लस 2ai प्लस 5bi प्लस 2bi स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे आई स्क्वायर क्या है, -1 के बराबर है, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 5b। सो जो भी आयोटा के साथ सारी चीज़ें थी ना, मैंने उनको एक साथ लिख दिया। सो ये सारी चीज़ों को एक साथ लिख दिया, और जो रियल पार्ट्स हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। सो इसको इधर लिख देते हैं, एंड रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 5a, एंड क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज़ अ -1 तो यहाँ आ जाएगा -2b, ठीक। अच्छा, इज़ इक्वल्स टू 1। अब हम कंपेयर कर लेते हैं लेफ़्ट साइड को राइट हैंड साइड को, ठीक है। यहाँ जो है ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है। सो आई कैन राइट दिस एज 0 × i। सो एक इक्वेशन आ गई 5a - 2b इज़ इक्वल्स टू 1, एंड दूसरी इक्वेशन आ गई है 2a प्लस 5b इज़ इक्वल्स टू 0। क्या किया हमने कि रियल को रियल के साथ कंपेयर किया एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ किया, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम दिस इनको क्या कर लेते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, पहली को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 2 एंड दूसरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 5, ठीक है। सो पहली को जो बाई 2 से किया तो 5 2 ज़ा 10a -4b इज़ इक्वल्स टू 2, राइट। 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 4। अच्छा, और फिर इसको हम 5 के साथ कर रहे हैं, तो 5 2 ज़ा 10a, 5 2 ज़ा 10, एंड ये तो 0 हो गया, राइट। अच्छा, अब हमने साइंस रिवर्स करने हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और 0 का मैटर नहीं करता, ये हो गया कैंसिल। एंड देन यहाँ क्या आ जाएगा, दिस विल बी अ -14b इज़ इक्वल्स टू 2, विच देयरफॉर गिव्स मी b की वैल्यू। b की वैल्यू आ जाएगी -2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अच्छा, अब जब b की वैल्यू पता चल गई तो a की आराम से पता चल जाएगी, कहीं से भी निकाल लो, इधर से निकाल लो, राइट। सो a विल बी इक्वल्स टू बल्कि आई डोंट वांट टू स्किप स्टेप्स, -5b। सो दैट इज़ अ b जब डाल दिया तो 5/7 आ जाएगा, राइट। सो देयरफॉर a इज़ इक्वल्स टू 5/14, राइट। सो हमारा this is another way of solving this, but obviously I would recommend doing the rationalizing, because this is easier. So just stick to this. The reason why I'm just telling you guys, because मुझे तुम लोगों की यहाँ essential reading में कहीं नज़र आया उसको कहते हुए, he mentioned something like this over here, yeah. Anyhow, just trust me, I saw it somewhere over here. Okay. For instance, इस question में भी they're asking you to find the real and imaginary part. इसको भी rationalize करोगे तो निकल आएगा, ठीक है। इसको भी rationalize करोगे निकल आएगा। किस तरह rationalize करना है, again denominator को करना है। So अगर 9 - 4i है, उसको numerator को भी उसके conjugate के साथ multiply करो, और denominator को भी, and then just solve it and you'll get the answer. I think I will definitely make a video in which I'm just solving questions, but abhi I really want to do the theory because it is quite long. अच्छा, next चीज़ जो तुम लोग के book में थी is to find the under root of something. So like वो कह रहा है कि complex number है 8 + 6i, वो कह रहे हैं उसका अंडर रूट निकालो. सो लाइक व्हाट डज इट वांट अस टू फाइंड? ही इज़ बेसिकली जस्ट आस्किंग यू टू फाइंड द अंडर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, सो विच इज़ काइंड ऑफ लाइक अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट. तो हम कह देते हैं कि अच्छा अंडर रूट निकालना है इसका. सो व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि हम इसको कह देते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं कोई और नाम ना लिखते. लेट मी सी इसने क्या लिखा हुआ था. I'm sure it made a nice
substitution here. The polar points है, ये argument है, saw it somewhere. So bad at finding. Anyhow, खुद से कर लेते हैं. इसको हम कह देते हैं कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x plus I y. ठीक है. So we'll have a z is therefore equals to an x plus I y whole square because I've removed the under root. So इसका square root निकालते हैं, is going to be square निकालते हैं, is going to be an x square plus 2xi so इसको select करते हैं i plus iy whole square. So we'll get an x square minus y square again because an iota square is equals to a minus 1. ये आ गया plus 2xy I. So इसका real part is this and imaginary part is that. ठीक है. अच्छा, so z था क्या 8 plus 6i. So अगर if we compare coefficients we can tell that जो real part है वो 8 के बराबर है and imaginary part 6 के बराबर है. सही है. So इसका करके देखते हैं. So what I'll have two equations. The first is कि an x square minus y square is equals to an 8. ठीक है. And the second equation is that an 2xy is equals to a 6. That is an x multiplied by y is going to be equals to a 3. ठीक है. जब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. यहाँ से आप क्या करो, x को सब्जेक्ट बना लो, उधर सब्स्टिट्यूट करो. सो जस्ट यूज़ सब्स्टिट्यूशन टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली. I won't waste class time. I'll just write the instructions. Okay, solve simultaneously. ठीक है. To get x and y. And therefore आपको फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट मिल जाएगा in this form. अच्छा, उसी तरह इस तरह के ये these are possible questions. Find the square root of this. So अगर again आपने बस सीधा कह दे रहे हैं कि अगर आप मुझसे स्क्वायर रूट पूछ रहे हो इस नंबर का और आई कैन अज्यूम कि आंसर है इस तरह का लिख देते हैं a plus i b. देन अगेन हम क्या करेंगे, z लिख दिया इज़ एन a plus i b होल स्क्वायर एंड z की देन वैल्यू हमने ये इधर लिख दी एंड इसको ओपन किया एंड कंपेयर कोफिशिएंट्स कर लिया. रिमेंबर विद मैथमेटिक्स इज़ दैट वंस यू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, बिकॉज आई हैव डन इट वंस ओवर हियर, उसके बाद आपको एग्जामिनर जितने मर्जी क्वेश्चंस देती है, ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट कीप रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर. ठीक है. तो यहाँ जो मर्जी नंबर्स हो, ये नंबर्स ही बदल रहे हैं ना, तो प्रोसीजर इटसेल्फ इज़ एग्जैक्टली द सेम. ओके. नेक्स्ट चीज़ है जो लास्ट कंपोनेंट है ऑफ दिस इज़ टू सॉल्व इक्वेशंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है. सो इसके जो हैं हम कर लेते हैं कि 3 पास पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि फ़र्ज़ करो वो आपको कह देता है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे जहाँ पे z स्टार क्या है, इट्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. ठीक है. अगेन हम इस तरह कर सकते हैं कि हम अज्यूम करते हैं, हमने इसको आंसर में कहा बिकॉज z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वी कैन से z इज़ इक्वल्स टू सम कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई. ठीक है. Therefore जिसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होएगा दैट्स जस्ट गोइंग टू बी x माइनस आई वाई. अब इसको अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं. दिस वाज द इक्वेशन, सो आई पुट इट हियर. लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, x माइनस आई वाई प्लस 1, और राइट साइड में आ जाएगा 2i मल्टीप्लाइड बाय x प्लस आई वाई. ठीक है. अच्छा, अब राइट साइड पे क्या आ जाएगा, रियल पार्ट्स x माइनस वाई एंड यहाँ क्या आ जाएगा y i एंड राइट साइड पे आ जाएगा 2x i एंड देन प्लस
2yi square, जहाँ पे i square is equals to a -1. So therefore यहाँ लिख सकते हैं 2xi minus 2y. ठीक है, ओके. नाउ हम इसको एक्चुअली ऐसे भी कर सकते हैं कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को ना हम कंपेयर कर लेते हैं, बल्कि इस तरह लिख लेते हैं कि यहाँ का बल्कि लेट मी री राइट इट हियर. इसको आधा करते हैं. ओके, सो रियल पार्ट्स को एक साथ लिख लेते हैं. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, x -1 + 2y, ये रियल है, ठीक है, और इमेजिनरी है -y + 2xi इज़ इक्वल्स टू 0. ठीक है, अच्छा, सब कुछ क्या किया, इसको भी इधर ले गए और इसको भी उधर ले गए. ठीक है, अच्छा, अब कंपेयर करते हैं यहाँ इसमें और इसमें. यहाँ रियल पार्ट भी ज़ीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो है. ठीक है, तो हमने क्या करना है, x -1 + 2y को इज़ इक्वल्स टू 0 करना है. यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई आपको, राइट, एंड दूसरे वाले को भी इज़ इक्वल्स टू 0 करना है, तो y + 2x को भी इज़ इक्वल्स टू 0 करना है, राइट. तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा y इज़ इक्वल्स टू -2x, एंड व्हेन यू सॉल्व दीज टू साइमल्टेनियसली अगेन यू विल गेट द आंसर. ठीक है, सो आपको जब आंसर मिल जाएगा तो आप z का बता दोगे. उसने कहा ना कि फाइंड z. अब ये तो सिंपल, लाइक दिस इज़ बेबी स्टफ, लाइक यू कैन ईजली सॉल्व दीज टू साइमल्टेनियसली. यहाँ लिख देती हूँ इंस्ट्रक्शन कि सॉल्व 1 and 2 simultaneously through substituting. So like just put equation 2 into equation 1 and then you will find x की value, and इसको जब आप 2 के अंदर डालोगे, put in equation 2 to find y. ठीक है, so and this is how you can solve such questions by assuming कि z का आंसर, z की वैल्यू है x + iy, and then you put it in the equation जो given in the exam and then you solve it. अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि you अगर इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ जाए then you can use the quadratic formula. So quadratic formula है क्या, remember इस तरह होता है कि अगर यहाँ होता है ना x² ax² plus bx plus c is equals to 0, then x की वैल्यू क्या होती है, इट्स -b plus minus b² minus 4ac over 2a, राइट. सो यहाँ ना इस वाले में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4i है, एंड c की वैल्यू इज़ -13. ठीक है, सो देयरफॉर z की वैल्यू क्या आएगी, इट्स गोइंग टू बी -b, सो दिस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -b². सो यहाँ चलो स्टेप्स मिस नहीं करती, -4i² -4ac over 2a. ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा 4i प्लस माइनस, अच्छा माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ 16i² आ जाएगा प्लस 4 into 13. आई एम सॉरी बट माई मेंटल मैथ सक्स. मुझे मतलब ये हालात हैं कि टेबल्स भी नहीं आते. वन वुड, आई मीन दैट साउंड्स हिलेरियस बिकॉज मैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे प्लस माइनस नहीं आता. अच्छा, ये आ जाएगा -16 हो जाएगा, तो 52 - 16 क्या हो जाएगा, इज़ 36. ठीक है, सो ये आ जाएगा 4i प्लस माइनस √36, एंड 6 6 36. ठीक है, मैं और डिवाइड बाई 2 भी तो था जो मैं खा गई हूँ बड़े मज़े से. मैं इसलिए चीज़ें खा रही हूँ बिकॉज माई बेबी हैज़ फाइनली फॉलन अस्लीप, एंड नाउ यू नो आई फील इन अ हरी के जल्दी सब कुछ कवर हो जाए, बिकॉज इफ़ द बेबी वेक्स अप देन आई एम डूम्ड. ओके, ये हो जाएगा 4i प्लस माइनस 6 6 36 over 2. ठीक, so the complex number that we're searching for is 2i
प्लस माइनस 3, ठीक है। तो इसको इस तरह दो तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 + 2i, एक ये रूट है एंड दूसरा रूट जो है 3 - 2i, सही। अच्छा, और लास्ट जो है ना वो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि देखो उसने ना दो इक्वेशंस आपको दी थी हैं, ठीक है, और वो आपको कह रहा है कि ना ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और मुझे ना आंसर बताओ, ठीक है। सो मतलब देखने में लग रही हैं स्केरी, लेकिन होपफुली इतना बैड नहीं होएगा। सो वी वांट टू सॉल्व दीज एंड वी वांट टू गिव द आंसर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। Okay, I'm back. Sorry, I got a bit interrupted. Okay, इस तरह कर लेते हैं। हाँ, अगर हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो फ्रॉम वन ना जो इजी लग रहा है जेड को सब्जेक्ट बनाना, तो जेड ले लेते हैं आयोटा -1 + i w एंड इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पुट इनटू इक्वेशन 2। हमेशा प्लीज़ जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना तो इस जो भी आप कर रहे होते हैं ना साथ साथ अपने एग्जामिनर को लिखना भी है कि दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा 1 - i, जेड की जगह हमने क्या डालना है एंड आई माइनस ब्रैकेट खोल देते हैं ताकि इजी लगे, w - i w प्लस i w इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो 1 - i मल्टीप्लाई हो रहा है i माइनस, बल्कि इसको ऑब्वियसली अब खोलना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारी एक्सप्रेशन के साथ एंड देन -i मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारी एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है, एंड देन वी हैव अ प्लस i w इज इक्वल्स टू 1। सो वी हैव i - w - i w -i square plus i w plus i square w plus i w is equals to 1। अच्छा, एक तो ये और ये कैंसिल हो गया। अच्छा, और कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है लगता नहीं है। ओ ये हम डाल सकते हैं, राइट, बिकॉज वी नो दैट iota square is equals to a 1। सो देन लेट्स जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट, यहाँ लिख देते हैं i - w प्लस 1 आ जाएगा, प्लस i w आ जाएगा एंड माइनस w आ जाएगा इज़ इक्वल्स टू अ 1 एंड देयरफॉर एक तो ये और ये भी गया एंड देन वी आर लेफ्ट विद i प्लस i w माइनस 2w इज़ इक्वल्स टू अ 0। कितना अजीब सा लग रहा है। खैर, यहाँ से हम w सब्जेक्ट बना सकते हैं। सो इफ़ आई मेक w द सब्जेक्ट तो ये हो जाएगा i - 2 एंड इसको उधर ले जाते हैं, राइट, हो जाएगा -i। सो w इज़ इक्वल्स टू -i ओवर एन i - 2, और ये नेगेटिव मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो इसको साथ लिख देते हैं, नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि वो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। सो इसको इस तरह लिख देते हैं। देखो अब हमें w की वैल्यू पता चल गई है, लेकिन ना इट्स नॉट इन द टिपिकल, लाइक वी नीड इट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। सो अब मतलब ये काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए अब इसको कॉम्प्लेक्स रैशनलाइज करके ना इसको चेंज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज क्या होता है कि उसके डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो न्यूमरेटर भी किया, डिनोमिनेटर भी किया, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा 2i प्लस आयोटा स्क्वायर एंड नीचे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर। अच्छा, सो ऊपर आ जाएगा 2i माइनस 1, नीचे आ जाएगा 4 माइनस एंड -1, ठीक है। So this becomes 2i - 1 over 5, ठीक है। सो अब w कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया है, उसका रियल पार्ट है -1 over 5 एंड इमेजिनरी पार्ट है +2 over 5i, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस एंड नाउ इन द एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। सो जो z है दैट वाज जो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ की थी
ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ की थी. सो उसके अंदर जो हम w की वैल्यू डालेंगे देन वील गेट द आंसर. ठीक है. सो यहाँ हमने कहा I minus 1 plus I, and we substitute in the value of w. ये हमने डाल दिया इधर. पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. सो 1 को मल्टीप्लाई किया तो -1/5 प्लस 2/5 I आ गया. और अब जब I को करेंगे so that's just a -1/5 I and a plus 2/5 I square. ठीक है. अच्छा, which becomes an iota minus. अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं. ये इसको जो हमने किया तो that just becomes a 1/5 I, right? So ये हो जाएगा 1/5 I. ये तो 1/5 को कुछ नहीं हुआ. ठीक है. सो ये तो 1/5 इधर ही आ गया. एंड ये जो है -1 के बराबर है तो देयरफॉर ये -2/5 हो जाएगा. ठीक है. सो वी एंड अप विथ आयोटा -1/5 आयोटा. एंड ये क्या हो जाएगा. दिस इज़ a -3/5, राइट. सो जब मल्टीप्लाई होएगा विद a -1 तो वो +3/5 में चले जाएगा. सही. अच्छा, अब इसको कर लेते हैं. दिस अगर आयोटा कॉमन लिया तो 1 - 1/5 आ जाएगा विच इज़ अ 4/5. ठीक है. सो वी हैव 4/5 I एंड जो इसका ये तो इमेजिनरी पार्ट है एंड रियल पार्ट इज़ 3/5. So this is the value of Z. This is the last question I will cover before ending the class. एंड बेसिकली क्या है कि वो ना इस तरह का उसने एक क्वेश्चन दे दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और उसको कह रहा है कि ये ना पोलर फॉर्म में बताओ. तो सबसे पहले ना स्टेप 1 यही है कि आपने इसको रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज क्या होता है कि 2 + 6I एंड डिनोमिनेटर को का जो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे ना आई हैव ऑलरेडी शोन सो आई वोंट रिपीट इज़ -2 + 2I आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब इस तरह अगर आपने विजुलाइज करना है तो इस तरह सोच लो कि ये ऐसे करके आ रहा है बिकॉज यहाँ इसका ये -2 है और ये भी इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है. सो ये 2 है और ये 2 है. ठीक. सो ये हमारा जो इंटीरियर एंगल है दैट इज़ अल्फ़ा एंड जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो थीटा है. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो आर की वैल्यू निकाल लेते हैं ना. आर क्या होता था ये इसकी लेंथ. ठीक है. सो आर क्या होएगा. आर इज़ बेसिकली द आर्ग्यूमेंट द मॉड्यूलस ऑफ दिस एंड पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से दैट्स गोइंग टू बी अ -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट. सो ये लेंथ मिल जाएगी हमारे वेक्टर की which is going to be a 4 + 4 which is an under root of 8 and under root of 8 is basically 4 multiplied by 2, right. and 4 का under root क्या होता है 2. so हम इसको 2 under root 2 करके लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब क्या करें. अब हमें पता है कि जो ये एंगल है ना. ठीक है. अच्छा, एक दो चीज़ें हमें देखने के लिए ऑब्ज़र्व करनी चाहिए कि जो ये पॉइंट है ना यहाँ x जो है वो हमारा नेगेटिव है एंड जो y है वो पॉजिटिव है. ठीक है. अच्छा, तो सबसे पहले तो ना हम थीटा में इंटरेस्टेड हैं. इस थीटा एंगल में इंटरेस्टेड हैं. सो अब हम कोई भी कर सकते हैं. हम अगर हम टैन यूज़ करते हैं. चलो टैन की बात करते हैं. सो इफ़ आई टेक टैन अल्फ़ा देन अल्फ़ा जो है वो हो जाएगा एडजेसेंट. ठीक है. एंड ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट. सो TOA होता है नहीं TOA
a. Okay, so that is a 2/2, which is equals to a 1. So जो tan of the interior angle is equals to a 1, and therefore जब हमने alpha की value निकाली तो tan inverse of 1 किया, and that becomes a pi by 4. ठीक है. अच्छा, अब हमने किस तरह याद किया कि आर्ग्यूमेंट क्या है. हमने कहा कि पहले भी आई शोड यू गाइस कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ this complex number which we call theta is equals to क्या है. This is 180 degrees minus alpha, right? So क्या हो जाएगा 180 degrees minus alpha. अच्छा, अब अल्फ़ा तो हम पाई बाय 4 निकाल के बैठे हुए हैं, राइट. सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस अ पाई बाय 4. देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ गई 3/4 पाई. अब जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर था ये कन्वर्ट हो गया, राइट. बिकॉज हमने क्या सीखा हुआ है. हमने कहा था कि अगर a + ib इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट मी यूज़ अनदर कलर एक्चुअली, तो उसके इस तरह करके कन्वर्ट होता है. सो इफ़ वी हैव a + ib, देन पोलर फॉर्म इज़ r cos थीटा + I sin थीटा, राइट. सो यहाँ हमारे पास 2 -2 + 2i है. r की वैल्यू हमने निकाली है 2√2, और यहाँ अंदर क्या लिखना है, वी जस्ट वांट टू राइट अ cos 3/4 pi plus I sin 3/4 pi. So अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्जन के बारे में, so this is how you make the conversion. It's not that difficult, it's quite easy. Okay, so I hope this lesson was beneficial. This is my first go at teaching A levels, so guys, don't be that ruthless with me, and if there's any valuable feedback, I am completely open to feedback. So have a nice day, and I'll see you in the next one. Take care.